Hello, dear teachers. Let's discuss today about pre-maths concepts. Pre-maths concepts are math skills that children learn in preschool and kindergarten. So you can see the tools which I'll be using for preparing the maths notebooks. These are the crayons, which are very soft, you can say. I'll be using for preparing the maths notebook to make it more attractive. These are the pencil colors, 24 shades you can see. DOMS is the brand name, and these are very smooth hexagonal color pencil, bright colors, accurate bonding process. Okay, and these colors come in 24 shades as I told you. They also have their customer care number. Let's understand something about pre-maths concept. So here I'll be preparing the notebook for maths. The concept of pre-maths helps the children to develop the confidence to tackle more advanced math concept later on. Okay, so we'll start with scribbling. In the previous part you have seen I have used English notebook, 4-line notebook. There we have started standing and sleeping line, slanting line. I have discussed about the left-handed and right-handed children. Okay, now here after that we can start with the scribbling, freehand scribbling. As I told you that these kids don't have any control scribbling, so kindly give them a good space to scribble so that they enjoy it rather than having a stress. ओके जब हम उनको एक लिमिटेड स्पेस देते हैं कि इसके बाहर आपका क्रेयॉन कलर्स नहीं जाना चाहिए, तो हम कहीं ना कहीं उनको एक स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर दे रहे हैं. लेट देम डू फ्रीली. सो मैंने उनको अच्छा बड़ा एक स्पेस दिया है मैथ्स नोटबुक में, और यहाँ वो आराम से स्क्रिबल कर सकते हैं. Colors themselves are not typically considered as a pre-maths concept. However, color related to the activities that can help to develop skills that are essential for future math learning. So, color pattern, color sorting, color counting, these are the activities which can be done in pre-maths concept. So here I am giving the activities to the kids to match the correct color. Okay, so they'll be seeing and understanding the basic color which we teach in the first level. Learning colors lays the foundation for future academic success in subjects like math, science, and arts. Color related activities such as coloring and painting helps in developing fine motor skill and eye hand coordination. So this is a very wonderful activities. यहाँ पर बच्चे को सही कलर देख करके सिर्फ मैच करना है. एक उनका रिवीजन है कलरिंग का. हम नोटबुक में वर्क देने से पहले हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाते हैं कई सारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल के साथ. कलर्स के साथ हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्री मैथ्स में करवा सकते हैं, जैसे कलर सॉर्टिंग, कलर क्रेयॉन्स या पेंसिल की काउंटिंग हुई, कलर मैचिंग हुई, टू अंडरस्टैंड द पैटर्न विच इज़ कमिंग नेक्स्ट. ओके, सो बहुत सारी अच्छी एक्टिविटीज़ हैं जो हम कलर के बेसिस में करा सकते हैं. सारी एक्टिविटीज़ मैं लेटर ऑन आई विल बी शेयरिंग विद इन अनदर वीडियो. So right now you can see I have completed and I have just taken 5 basic colors, जिसमें रेड, येलो, ब्लू तो प्राइमरी कलर्स हैं जो हम पहले इंट्रोड्यूस करवाते हैं बच्चों को. सो लेट्स डू दिस एक्टिविटी रिकग्नाइजिंग शेप्स विद दिस टिपी टिपी टैप फ्लैश कार्ड्स. सर्कल के पीछे क्लॉक बनी है. देन स्क्वायर के पीछे अगर आप देखेंगे तो कैरम बोर्ड बना हुआ है. देन रेक्टेंगल के पीछे डोर मैट है. देन ट्रायंगल के पीछे सैंडविच बना हुआ है. ये पहले इनिशियल शेप्स है जो हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो मैं भी ये 4 शेप्स ही यूज़ कर रही हूँ. और मेरे घर पे आसपास जो भी चीज़ें अवेलेबल होंगी उनको मैं शेप के साथ, डेली यूजेस की जो चीज़ें हैं वो मैं शेप्स के साथ बच्चों को दिखाऊंगी. सो दीज आर द एक्टिविटीज़ विच आई एम गोइंग टू डू इन माई क्लासरूम.
Shapes has the classification such as size, shape and color. एंड यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मैंने शेप्स इंट्रोड्यूस किए हैं लाइक सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल विद द थिंग्स विच वर अवेलेबल नियर बाय मी. बैंगल सर्कल में रखा है. देन रूबिक्स स्क्वायर में 100 रुपीज़ का नोट जो है वो रेक्टेंगल में रखा है. एक पराठा रखा है मैंने ट्राइंगल दिखाने के लिए. देन मैंने दूसरी भी चीज़ें भी यूज़ करी है. गेम है मेरे बेटे के पास शेप्स का, उसके शेप्स भी मैंने इनके साथ मैच किए हैं. ट्राई टीचिंग शेप्स विद द थिंग्स अवेलेबल नियर बाय यू. Now recognize the number and say aloud 1. So I'm showing the thing 1, like one sun with the help of the flashcard and one bangle I've shown. Then with number 2, कार्ड के पीछे 2 फ्लावर्स बने हैं वो दिखाया मैंने, showing the 2 things. and then 2 बैंगल्स रखे हैं मैंने और शो किया कि इसके अलावा भी आप ऐसे बच्चों को दिखा सकते हैं. देन 3 कार्ड के पीछे आप देखिए 3 काइट्स बनी हुई हैं. रिकग्नाइज नंबर 4 एंड काउंट 4 बॉल्स एट द बैक. देन नंबर 5 को रिकग्नाइज कीजिए, पीछे 5 फिंगर्स काउंट करिए. फिंगर्स काउंटिंग का भी एक तरीका होता है जो मैं आपको बताऊंगी आगे. फिर नंबर रिकग्नाइजेशन के लिए नेक्स्ट एक्टिविटी हम कर रहे हैं कलर पेंसिल काउंटिंग. सो नंबर 1 के आगे मैंने 1 पेंसिल कलर पेंसिल रखी, नंबर 2 के आगे 2 रखी हैं, देन 3, देन 4, देन 5. ये जो फ्लैश कार्ड्स हैं ये बहुत सुंदर फ्लैश कार्ड्स हैं वी कनेक्ट एजुकेशन की तरफ से. बुक का नाम है टिपी टिपी टैप. आप देख सकते हैं ये अवेलेबल है टिपी टिपी टैप. बहुत अच्छी इसमें लर्निंग मटेरियल्स हैं बच्चों के लिए, काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ हैं, ज़रूर देखिएगा इस बुक को. Math refers to broader subject of mathematics which includes concepts like algebra, geometry, etc. Numeracy focuses on the practical ability to understand and use numbers in daily life. And pre-maths is all about building a foundation before children can tackle more complex maths concepts. They need to develop these basic numeracy skill first. Counting fingers like 1, 2, 3, 4, 5 with the right hand and 6, 7, 8, 9, 10 with the left hand. ये ज़रूर ध्यान रखिए आप. So now we will again do the recognition practice for numbers, and here I'm preparing the notebook for recognize and match the numbers. As we know, in pre-primary pre-maths concept consists like counting of number 1 to 10, number patterns, sorting, comparing, measurement, shapes, colors, size. किसी भी टॉपिक में जब हम कोई चीज़ इंट्रोड्यूस कराते हैं, लेट्स से अगर मैंने स्टैंडिंग लाइन या स्लीपिंग लाइन इंट्रोड्यूस करी या फिर नंबर्स इंट्रोड्यूस कर रही हूँ जैसे मैं भी, तो मुझे पहले उनका इंट्रोडक्शन देना होता है, जैसे दिखाना होता है दिस इज़ नंबर 1. देन बच्चा उसे रिकग्नाइज़ करता है, ओके दिस इज़ 1, दिस इज़ 2. देन उसे किसी एक्टिविटीज़ में हम उनको अप्लाई करना सिखाते हैं. देन टू मेक श्योर कि उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, हम फिर उनको रिवाइज़ कराते हैं. हमको वापस उन्हें एक बार और रिवाइज़ कराना चाहिए. जितनी रिवीजन एक्टिविटीज़ कराएंगे उतना उनके लिए अच्छा है. सो ये कोई भी कॉन्सेप्ट जब हम सिखाते हैं तो उसमें ये इंट्रोड्यूस, रिकग्नाइज, अप्लाई, रिवीजन एंड देन अगेन रिवीजन, ये स्टेप्स हमें ज़रूर फॉलो करने चाहिए. Now while preparing this notebook, I'll make sure that I'll be focusing more than one topic or activities. Like अगर हम देखें इसमें तो हम numbers recognition तो कर रहे हैं, साथ साथ हम colors भी match कर रहे हैं. Number 1 is with red color, number 2 येलो है, 3 ब्लू, 4 ग्रीन एंड 5 इज़ ऑरेंज. तो ये बेसिक कलर्स है जो हम लेवल 1 में हम बच्चों को यूजुअली इंट्रोड्यूस कराते हैं. तो यहाँ पर मैं 2 एक्टिविटीज़ को कैटर कर रही हूँ. Now this is another very good and interesting activities. I just like this activity so much. Here the child has to follow the instruction, recognize and color the number accordingly. So ये जो रिवीजन एक्टिविटी है इसमें हम बिल्कुल श्योर हो जाएंगे कि बच्चे ने नंबर्स को रिकग्नाइज कर लिया है, नहीं किया है.
सो यहाँ पर मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, जहाँ color all the 1 with red, color all the 2 with yellow, color all the 3 with blue, color all the 4 with green and color all the 5 with orange. So यहाँ पर बच्चे को मैं 0 से इनफैक्ट 0 से 5 तक नंबर्स का एक पज़ल दे रही हूँ, जहाँ पे बच्चे को 1 को रिकग्नाइज करके उसे रेड कलर से स्ट्राइक ऑफ करना है या फिर कलर से अच्छे से स्क्रिबल कर देना है, जैसा बच्चे को कंफर्टेबल हो. बिफोर स्टार्टिंग द वर्क इन द वर्क बुक, एनी सब्जेक्ट वर्क बुक, जैसे हम अगर मैथ की बात करें या प्री मैथ कॉन्सेप्ट की बात करें, तो किसी भी वर्क बुक में वर्क बच्चों को कराने से पहले मेक श्योर यू हैव डन n नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ एंड रिवीजन विद देम. तो रिवीजन हम पहले जब हम इंट्रोडक्शन देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बच्चे को बताना है कि नंबर 1 है, 2 है या 3 है, मैंने फ्लैश कार्ड दिखा सकती हूँ, मैंने ग्रीन बोर्ड, वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड में नंबर लिख के दिखा सकती हूँ, मैं उन्हें नोट उनकी जो वर्क बुक है या मेन बुक है उसमें बुक में नंबर्स दिखा सकती हूँ, है ना. तो मुझे उनको पहचान करवानी है पहले लेवल पे, ठीक है, फिर मैं उनको ये एक्टिविटीज़ दे सकती हूँ, ठीक है. नोटबुक में एक्टिविटीज़ देने से पहले मैंने बच्चों को बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसे गेम्स करवाए, एक्टिविटीज़ कराई, जहाँ उनको मैंने 0 1 2 3 4 5 नंबर्स बार बार दिखाए हैं. एंड इवन मैंने कलर्स की उनको बहुत सारी प्रैक्टिस दी विदाउट नोटबुक एंड नोटबुक में भी. अब जाके फाइनली मैं उनको ये एक्टिविटी दे रही हूँ, जहाँ पर उन्हें 1 2 3 4 5 को अलग अलग कलर से स्ट्राइक ऑफ करना है या स्क्रिबल करना है. सारे नंबर्स को वो अलग कलर से स्क्रिबल कर देंगे या कलर कर देंगे. 0 उनको विदाउट कलर दिखेगा, तो वो उसको रिकग्नाइज करेंगे कि ओके दिस इज़ समथिंग विच इज़ विदाउट एनी कलर, सो व्हाट इज़ दिस इज़ 0. Okay, now in this activity the child will be joining the dots, okay, starting from 1 2 3 4 and 5. तो जो ant है उसको बच्चे को एप्पल तक पहुंचाना है. Okay, so this is the activity count and match. These activities are very important in pre-primary. They play a significant role in developing their cognitive, social and emotional development. Count and match in cognitive development, they build the number sense, one-to-one correspondence, basic maths concept है ये. सोशल इमोशनल डेवलपमेंट में ये फाइन मोटर स्किल डेवलप करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस. बच्चे को काउंट एंड मैच एक्टिविटी से काफ़ी हेल्प मिलती है टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस. सोशल डेवलपमेंट में बच्चे शेयरिंग एंड टेकिंग टर्न, दे लर्न टू टेक हाउ टू टेक द टर्न, कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन डेवलप होता है, डिस्कस अबाउट द कंपेयरिंग, हाउ दे कंपेयर द मैचेस करेक्टली. ओके, कोलैबोरेशन, काउंट एंड मैच एक्टिविटी encourage the collaboration, helping children to work together towards the same goal. So with the help of these color pencils, and I have tried to make a good pictures जिन्हें बच्चे काउंट करके करेक्टली मैच कर पाएँ. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गिव सम engaging activities in the notebook. Engaging activities in the notebook make learning fun and fosters a love for learning, which is very important. जब तक बच्चे को मज़ा नहीं आएगा नोटबुक में वर्क करने में, या फिर वो इन्जॉय नहीं करेगा, दे विल नॉट बी लर्निंग समथिंग. एंड यंग किड्स को, ये जो छोटे बच्चे होते हैं प्री प्राइमरी स्पेशली, इनको बहुत मुश्किल होता है एक जगह में देर तक बिठा के रखना. उनका अटेंशन स्पैन बहुत बहुत कम होता है. हार्डली वो कोई चीज़ में कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं फॉर अ मिनट और 2. सो कैसे आप उनको बिठा के रखेंगे देर तक, मतलब हार्डली 10-15 मिनट्स तक, ताकि वो एक एक्टिविटी को कंप्लीट कर पाएँ कॉन्सेंट्रेशन के साथ. सो यू हैव टू मेक दैट लर्निंग इन्जॉयबल फॉर देम. और वो आप इस तरीके से कर सकते हैं जब वो चीज़ें कलरफुल रहें. बच्चे कलरफुल चीज़ें बहुत इन्जॉय करते हैं. आप बच्चों को डेली सीरियल्स नहीं दिखा सकते, लेकिन आप उनको डेली कार्टून्स दिखा सकते हैं. वो इन्जॉय करते हैं. क्यों? बिकॉज दैट कलरफुल ग्राफिक्स, है ना, उनको वो अट्रैक्ट करती हैं चीज़ें. कुछ बच्चों का अटेंशन स्पैन और ज़्यादा होता है, लाइक 3 years ओल्ड अटेंशन स्पैन मे बी 6 to 8 minutes, 4 years अटेंशन स्पैन मे बी 8 to 12 minutes, बट इट वेरीज फॉर एवरी चाइल्ड. सो ज़रूरी नहीं है हर बच्चा काउंट एंड मैच की ये एक्टिविटीज़ जो मैं बना रही हूँ आपके सामने, इसी से ही काउंटिंग सीखेगा. हो सकता है कोई बच्चा पेंसिल की जो मैंने एक्टिविटी करी थी काउंटिंग की, उससे पिकअप कर ले काउंटिंग को.
कुछ बच्चे मैच करने से पिक कर लें, कुछ बच्चे नेचर लवर हैं तो वो शायद क्लास के बाहर कभी आप ले करके जाएं तो उनको आप फ्लावर्स काउंट करा दें या फिर आप उनको ट्रीज़ काउंट करा दें, वो उससे काउंटिंग पिक कर लें. सो एवरी चाइल्ड इज़ अ डिफरेंट लर्नर. If we talk about multiple intelligence from Howard Gardner, so the 8 type of intelligence described by Gardner included musical, rhythmic, visual, spatial, verbal, linguistic, logical, mathematical, bodily, kinesthetic, interpersonal, intrapersonal, and naturalistic learning. Existential intelligence is the ninth type of intelligence suggested as an additional to the Gardner's original theory. हिंदी में इसे अस्तित्वगत बुद्धि कहा गया है. Howard Gardner first outlined his theory in his 1983 book Frames of Mind, the Theory of Multiple Intelligence, where he suggested that all people have different kind of intelligence. In 2009, Howard Gardner also suggested 2 additional type of intelligence, existential and moral. Pre-primary एक वास्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ क्लासरूम के अंदर नहीं हो सकता है. और हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी के थ्रू मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है, मतलब हर व्यक्ति की इंटेलिजेंस लर्निंग एबिलिटी अलग है. ओके, सो इसलिए हम इनिशियल स्टेजेस में जब कुछ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराते हैं बच्चों को तो हमें अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट्स लेने चाहिए, अलग अलग टाइप की लर्निंग टीचिंग यूज़ करनी चाहिए. ओके, every child may not be a musical rhythmic learner, every child may not be a visual spatial learner. ओके, सब बच्चे अलग टाइप के लर्नर्स होते हैं और ये आप समझ सकते हैं. पेरेंट्स को आपको काउंसिल करना पड़ता है, कई बार उनको समझाना पड़ता है. मे बी हर बच्चा राइटिंग पार्ट में अच्छा नहीं हो, मे बी हर बच्चा स्टोरी टेलिंग जब आप करते हो उसमें कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता हो. ठीक है, सो एवरी चाइल्ड इज़ अ डिफरेंट लर्नर, सो यू हैव टू टेक केयर एंड केटर every type of learner because they are into their very beginning stage. You are the one to help them out, to make them learn, to make them understand. I know preparing notebooks for so many children may be a big deal sometime, but trust me, आप जिस तरीके से अभी उनका फाउंडेशन ले करेंगे वो बहुत हेल्पफुल रहेगा आगे जाके उनके लिए. उनका लव फॉर लर्निंग जो पार्ट है वो डेवलप आपकी वजह से ही होता है. प्री प्राइमरी टीचर्स, यू आर डूइंग द ग्रेटेस्ट जॉब, यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग lot many things to their future. Okay, so here are my some suggestion for preparing the notebooks. I really want to share my ideas, share my methodologies. जो भी मेरी लर्निंग है इतने सालों की मैं सच में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. एंड आई फाइंड दिस प्लेटफॉर्म द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, क्योंकि ट्रेनिंग्स देने के लिए मैं बहुत सारे स्कूल्स में जा चुकी हूँ, कई टीचर्स से मिल चुकी हूँ, आज भी उनके कॉन्टैक्ट में हूँ और इतने सालों का उनको लर्निंग एक्सपीरियंस था कि उनके संग मुझे भी बहुत चीज़ें सीखनी मिली. सो दिस नोटबुक प्रिपेयरिंग आई हैव सीन इन वन ऑफ माई स्कूल्स. टीचर्स बहुत इन्जॉय करते थे नोटबुक प्रिपेयरिंग के लिए, उनके पास इतने सजेशंस रहते थे. दे आर so many suggestions and so many ideas. I've seen the teachers turning the classroom upside down just to make their children understand the concept, the devotion, the level of devotion I've seen in pre-primary teachers, very appreciated. बहुत मेहनत करते हैं प्री प्राइमरी टीचर्स. और आपके पास इससे अच्छे सजेशन, इससे अच्छे आइडियाज़ हो सकते हैं, मेरे संग ज़रूर शेयर करिएगा. अभी मेरे पास जो आइडियाज़ है वो मैंने आपसे शेयर किया है. सो ये नोटबुक, ये जो मैंने प्रिपेयर करा है अभी एक्टिविटीज़, ये काउंट एंड मैच का है. इसमें बच्चा कलर सीख रहा है, काउंटिंग सीख रहा है, नंबर्स रिकॉग्नाइज कर रहा है, कलर रिकॉग्नाइज कर रहा है एंड काउंट करने के बाद कलर करेक्ट नंबर के साथ मैच करना है उनको. ओके, सो दिस इज़ काउंट एंड मैच. एंड मैंने एक राइम भी ऐड करी है लास्ट में. सो ये भी हम वार्म अप एक्टिविटीज़ में करा सकते हैं. ये राइम मैंने सजेशन के लिए लास्ट में ऐड करी है, पर वार्म अप एक्टिविटी बिगनिंग में होती है जब हम इंट्रोडक्शन पार्ट करवा रहे होते हैं. ओके डियर टीचर्स, थैंक यू सो मच.